A very good morning to all of you. Welcome back student to your online class of mathematics class 6th. As you already know, you have done up to the exercise number 3.2 and now you are going to start your exercise number 3.3. But before coming to the exercise number 3.3, let's revise the divisibility rules first. So, the divisibility rule for 2 is that any even number or number whose last digit is an even, that is 2, 4, 6, including 0, is always completely divisible by 2. Which means 2 की divisibility के लिए जो last digit है वो multiple होना चाहिए 2 का या फिर even number होना चाहिए जिसमें 0 भी included होता है. Next is divisibility rule for 3. So, divisibility rule for 3 states that a number is completely divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. That is, it is a multiple of 3. Next is divisibility by 4. So, if the last two digits of a number are divisible by 4, then that number is a multiple of 4 and is divisible by 4 completely. Next is divisibility by 5. Number with last digit 0 or 5 are always divisible by 5. Next is divisibility by 6. Numbers which are divisible by both 2 and 3 are divisible by 6. That is, if last digit of the given number is even and sum of its digit is a multiple of 3, then the given number is also a multiple of 6. Next is divisibility by 8. If the last 3 digits of a number are divisible by 8, then the number is completely divisible by 8. Next is divisibility by 9. The rule for divisibility 9 is very much similar to divisibility rule for 3. That is, if the sum of digits of the number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. Next is divisibility by 10. Divisibility rule for 10 states that any number whose last digit is 0 is divisible by 10. Next is divisibility rule for 11. If the difference of sum of alternative digits of a number is divisible by 11, then that number is divisible by 11 completely. So, let's come to the exercise number 3.2 and the first question of this exercise is, let's start our exercise number 3.2 and the first question is, using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 2, divisible by 3, by 4, by 5, by 6, by 8, by 9, by 10 and by 11. So our first number is 128. That means 128. And first of all, we will discuss the divisibility of the number by 2. So for 2, the last digit should be a multiple of 2. So the last digit of this number is 8. So this is a multiple of 2. So this given number will be divisible by 2. Let's come to the divisibility rule of 3. For 3, the sum of digits should be divisible by 3. So first of all, we will sum the number of digits in the given number. 1 plus 2, 3 and 3 plus 8, 11. So 11 is not divisible by 3. So this number is also not divisible by 3. For 4, the last two digits should be divisible by 4. So the last two digit is 28 and 28 will be divisible by 4. So this number is divisible by 4. For 5, the last number should be 0 or 5. But the last digit in this number is not 0 and 5. So this number will be not divisible by 5. For 6, the number should be divisible by both 2 and 3. But this number is not divisible by 3. So this number will be not divisible by 6. For 8, the last 3 digits should be divisible by 8. So the last 3 digits is 1 to 8. So this is divisible by 8. So the given number is divisible by 8. For 9, the sum of the digits should be divisible by 9. The sum of digit is 8 plus 2, 10, 10 plus 1, 11.
So 11 is not divisible by 9. So this is not divisible by 9. For 10, the last digit should be 0, but the last digit in this case is 8. So this number is not divisible by 10. For 11 के लिए सबसे पहले आपको सम ऑफ इवन प्लेसेस करना पड़ेगा एंड सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस. अब आप ऑड और इवन प्लेसेस को कैसे देखोगे किसी पर्टिकुलर नंबर में, इसकी हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिविजिबिलिटी बाय 11 के रूल को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 11 के लिए आप क्या करोगे, रूल को फॉलो करोगे. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो नंबर है उस पर आपको प्लेसेस मार्क करने पड़ेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द राइट साइड. दिस इज नंबर 1 प्लेस, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. देन सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस कौन सी होंगी, 1 और 3, और ऑड प्लेसेस पे कौन से नंबर है, 1 एंड 8. तो आप क्या करोगे, 1 और 8 को प्लस कर दोगे. सो योर आंसर इज 9. देन सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेसेस. इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है, सिर्फ 2. ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे 2. देन यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस between both the sums. So 9 minus 2 is equal to. So the divisibility rule for 11 says that a number is divisible by 11 if the difference of sum of digits at odd places and the sum of digit at even places comes out to be 0 and a number that should be a multiple of 11. सो इस केस में हमारा आंसर क्या है, 7. सो 7 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11. हैंस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11. सेकेंड नंबर इज 990. सबसे पहले हम 2 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. 2 के लिए डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि जो लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए या 2 का मल्टीपल. सो इन दिस केस द लास्ट डिजिट इज 0. सो दिस इज डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी फॉर 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि जो सम ऑफ डिजिट है वो डिविजिबल होने चाहिए 3 से. सो सम कर लेते हैं. 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 0 18. तो 18 क्या है, 3 से डिविजिबल. तो ये नंबर भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी फॉर 4 की डिविजिबिलिटी के लिए जो लास्ट 2 डिजिट है वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से. लास्ट 2 डिजिट क्या है, 90, और आपको पता है कि 94 से डिवाइड नहीं होंगे. तो 4 के लिए डिविजिबिलिटी क्या होगी, नो. नेक्स्ट इज 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए या 5. इस केस में लास्ट डिजिट आपका 0 है तो ये जो नंबर है वो 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल. नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 के लिए क्या कंडीशन है कि जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, और जो ये नंबर है ये दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी और 3 से भी. तो ये क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल. नेक्स्ट था डिविजिबिलिटी फॉर 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि जो लास्ट 3 डिजिट है वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से. लास्ट 3 डिजिट इज 990. सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8. सो द आंसर ऑफ दिस नंबर इज नो फॉर 8. नेक्स्ट इज फॉर 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था, दैट सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9. सम ऑफ डिजिट्स क्या आया था आपका, 9 प्लस 9 18. तो ये क्या होगा, 9 से डिविजिबल. तो आप 9 के नीचे क्या लिखोगे, यस. फिर था 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, और इस केस में आपका लास्ट डिजिट है 0. तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा, 10 के लिए यस. लास्ट था 11. अब हम फिर से 11 के लिए अलग से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. सो दिस इज द नंबर जिसके लिए आपने क्या करनी है, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है. 11 के लिए हम डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स एंड ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट एंड इवन प्लेसेस. देन उन दोनों नंबर्स का हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हम कर लेते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस.
ऑड प्लेसेस पे आपके कौन से नंबर है? 0 एंड 9. 9 प्लस 0 9. नेक्स्ट सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेसेस. इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है? सिर्फ 9. लास्ट में आप क्या निकालते हो? डिफरेंस. 9 माइनस 9 इज 0. और 11 के डिविजिबिलिटी के लिए जो आपका डिफरेंस का आंसर है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल. सो आपका डिफरेंस 0 आ गया. सो 990 इज डिविजिबल बाय 11. टेबल में भी आपने 990 के लिए डिविजिबिलिटी रूल 11 के लिए आपने आंसर क्या लिखा है? यस. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स की डिविजिबिलिटी चेक कर ली है बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11. So I hope the divisibility rules are very much clear to you. So you can try some more parts of this question, but at last I will discuss the last part of this question. This is 406839. For divisibility by 2, the last digit should be divisible by. So the last part is 406839. तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं बाय 2. 2 की डिविजिबिलिटी के लिए जो लास्ट डिजिट है वो मल्टीपल होना चाहिए 2 का या इवन नंबर होना चाहिए जिसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है. बट इस नंबर में जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? 9. सो 9 इज नॉट ए इवन नंबर. सो आपकी डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए आपका आंसर क्या आएगा? नो. नेक्स्ट था 3. 3 के लिए आपका क्या रूल होता है? दैट द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. अगर हम सम ऑफ डिजिट्स करें दैट इज 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9 तो आपका आंसर 30 आएगा. एंड आपको पता है कि जो 30 है वो 3 से क्या होगा? डिविजिबल. तो आपका आंसर क्या आएगा? यस. 4 के लिए जो लास्ट 2 डिजिट है वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से. लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 39. 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. तो आपका आंसर क्या आएगा? नो. 5 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5. बट इसमें आपका लास्ट डिजिट ना 0 है ना 5. क्या है? 9. सो आपके डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए आंसर क्या होगा? नो. नेक्स्ट था 6. 6 की डिविजिबिलिटी के लिए जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. बट ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये 6 से भी क्या होगा? नॉट डिविजिबल. नेक्स्ट था 8. 8 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल था कि जो लास्ट 3 डिजिट्स है वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से. लास्ट 3 डिजिट्स क्या है? 8, 3, 9. तो ये तीनों नंबर डिवाइड नहीं होंगे 8 से. तो आपका 8 के लिए भी आंसर क्या आएगा? नो. नेक्स्ट था 9. 9 के लिए आप डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हो? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9. सम ऑफ डिजिट्स मैंने आपको बता दिया था 30 और आपको पता है 39 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे. तो आपका आंसर क्या आएगा? नो. 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए बट इसमें लास्ट डिजिट 9 है. तो 10 के लिए आपकी डिविजिबिलिटी का आंसर क्या आएगा? नो. लास्ट था 11. तो अब हम 11 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करते हैं इस नंबर में. 10th पार्ट में आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 11. सबसे पहले आप इनकी प्लेसेस को मार्क कर लो. दिस इज फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लेस. तो अब आप सबसे पहले क्या लिखोगे? सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस पे आपके कौन से नंबर है? 9, 8 एंड 0. 9 प्लस 8 प्लस 0 आपका आंसर कितना आएगा? 17. देन आप करोगे सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेसेस. इवन प्लेसेस पे आपके कौन से नंबर है? 3, 6 और 4. इसको प्लस करके आपका आंसर आएगा 13. फिर आप क्या निकालते हो? डिफरेंस. डिफरेंस क्या होगा? 17 माइनस 13, 4. So 4 is not a multiple of 11 and neither 0. So this number is not divisible by 11. और आपने टेबल में भी इसका आंसर क्या मेंशन किया था? नो.
तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है वो आप इजिली ट्राई कर सकते हो by using divisibility rules for each number, that is for 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11.